इसमें अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया ना अभी, सॉरी। ऑलराइट, कृष्णाज एंट्रेंस इनटू द द्वारका। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कृष्णा कैसे हस्तिनापुर छोड़ के गए, वहां पर सब लोगों रो रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, दे वर फीलिंग अ लॉट ऑफ सेपरेशन। एंड नाउ वो द्वारका आ गए हैं। यहाँ पर नाउ जो द्वारका के लोग हैं, दे आर फीलिंग एक्सटेटिक कि वाओ, जो कृष्णा इतनी देर से गए हुए थे वो आ गए हैं। अब उनका अराइवल है। वेरी स्वीट पास टाइम। तो लेट्स रीड द वर्स। तत्रोपानिता बलयो रवेर्दीपमिवाद्रितः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलभेन नित्यदा प्रीति उत्फुल्ला मुखा प्रोच्चुर्हर्षगद्गदाय गिरा पित्रं सर्वसुहृदं अवे अवेतारम अवार्भकः। Translation: The citizens arrived before the Lord with their respective presentations, offering them to the fully satisfied and self sufficient one, who, by his own potency, incessantly supplies others. These presentations were like the offering of a lamp to the sun. Yet citizens began to speak in ecstatic language to receive the Lord, just as the wards welcome their guardian and father. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? Yeah, I can read, Prabhuji. Thank you, Prabhu. The Supreme Lord Krishna is described here as Atmaram. uh, Atmaram. He is self-sufficient and there is no need for him to seek happiness from anything beyond himself. He is self-sufficient because his very transcendental existence is total bliss. He is eternally existent. He is all cognizant and all blissful. Therefore, any presentation, however valuable it may be, is not needed by him. But still, because he is the well-wisher for on one and all, he accepts from everyone everything that is offered to him in pure devotional service. It is not that he is in want for such things, because the things are themselves generated from his energy. The comparison is made herein that making offering to the Lord is something like offering a lamp in the worship of the sun god. Anything fiery and illuminating is but an emanation of the energy of the sun, and yet to worship the sun god, it is necessary to offer him a lamp. In the worship of the sun, there is some sort of demand made by the worshipper, but in the case of devotional service to the Lord, there is no question of demand from either side. It is all a sign of pure love and affection between the Lord and the devotee. The Lord is Supreme Father of all living beings, and therefore, those who are conscious of all vital relation with God can make fil- filial, Filial. filial demands from the Father, and the Father is pleased to supply the demands of such obedient sons without bargaining. The Lord is just like the desire tree, and from him everyone can have everything by the causeless mercy of the Lord. As the Supreme Father, the Lord, uh, however, does not supply to a pure devotee what is considered to be a barrier to discharge the discharge of devotional service. Those who are engaged in the devotional service of the Lord can rise to the position of unalloyed devotional service by his transcendental attraction. Right. So, क्या पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ से? द फर्स्ट थिंग इज आत्मा राम। आत्मा राम, प्रभुपाद आत्मा राम से स्टार्ट कर रहे हैं। आत्मा राम का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? व्हाट इज So आत्मा is राम? self happiness यानी हाँ। it's a happiness happy है. He doesn't need anything. No one. He doesn't need it by anyone. He doesn't need anyone. Hmm. या तो वो खुद से ही हैप्पी हैं, उनको और कोई नहीं चाहिए। ठीक है। ही डजंट नीड एनीवन लाइक अस। हमें क्या चाहिए? पूरी दुनिया चाहिए।
पूरी दुनिया भी हमारे कदमों में आके हमें खुश करने की कोशिश करेगी ना, तब भी हम खुश नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम है हमारी। बट द थिंग इज के हमारे अ, भगवत गीता में क्या बोलते हैं भगवान 15.7 में, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो क्या बोल रहे हैं, ममई वांशो जीव लोके, ये जो जीव हैं, हम लोग जो हैं, हम किसका अंश हैं, हम भगवान का ही तो अंश हैं। तो अगर भगवान में ये आत्मा राम वाली क्वालिटी है, तो ये आइडियली हम में भी होनी चाहिए, इजंट इट? तो हम में वो क्वालिटी क्यों नहीं है? वी आर सोल्स, सत चित आनंद। वी आर फुल ऑफ आनंद, फुल ऑफ ब्लिस। अंदर इतनी ज्यादा ब्लिस है हमारे कि हम, जब अगर वो बाहर आ जाए तो ये वाली जो बॉडी है ये संभाल नहीं पाएगी उसको, बेहोश हो जाएंगे हम, इतनी ज्यादा ब्लिस है। ठीक है ना? और वो ब्लिस जब एक्सपीरियंस होती है भक्तों को, देखा है ना, वो मूर्छित हो जाते हैं, भगवान को देखते हैं, वो एकदम से वो कवरिंग हटती है, और वो जो आनंद अंदर भरा हुआ है सोल के, वो बाहर आता है। और इतने आनंद की बॉडी, इस बॉडी को वो नहीं है, आदत नहीं है, वो बेहोश हो जाती है। हम्म, तो इतना ज्यादा आनंद भरा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। अभी अ, हम सब घूमने गए हैं, कहाँ पर, ये छुट्टियों में, है कि नहीं? तो सब एकदम रिचार्ज हुए होंगे, रिलैक्स्ड, रिजुविनेटेड, है कि नहीं? हुए हैं कि नहीं हुए हैं? नहीं हुए? मिथुन प्रभु से रिला रहे तो ये टेम्पररी होते हैं, लेकिन जैसे ही लास्ट दिन होता है ना कि हाँ भी कल से जॉब स्टार्ट करनी है, तो कोई हैप्पीनेस नहीं रहती है। हैं। फिर सब हम ड्रीम ही देखते हैं कब ये दिन वापस आएगा। आई आज दिस क्वेश्चन जब न्यू ईयर की पहली क्लास थी, मैंने भक्ति वृक्षा मेंबर से पूछा, गुड वेलकम बैक। तो बड़े सब लोग एकदम रिजुविनेटेड आए हो गए। तो उनका भी आंसर आपके जैसे था, उन्होंने इतना टेम्परेरी हैप्पीनेस, जितना उतना वो डीप नहीं गए, बट दे सेड के प्रभु नहीं, मजा तो आया ही नहीं। हमें एक और हॉलीडे चाहिए। रिलैक्स तो किया ही नहीं। तो दिस इज व्हाट हैपन। हमें लगता है कि हम वो चीज करके, वो जो मटेरियल चीजें कर करके हमें खुशी मिलेगी। बार बार बीच पे, मैं खुद 2 बार बीच पे गया हूँ बच्चों को लेके, बार बार बीच पे लेके जाओ उनको, फिर वही काम करो, फिर रेत आ जाएगी गाड़ी में, फिर उसको वैक्यूम करो, सारा कपड़े साफ करो, वो सारा साइकिल, इतना तुम उतना वहां पे बीच पे नहीं एंजॉय करते जितना उसके पहले वाले काम और उसके बाद वाले काम करने पड़ते हैं। बट फिर भी हर छुट्टियों में हम बीच जाएंगे, हम चेरी पिकिंग जाएंगे, हम अपनी बॉडी के लिए काम करेंगे, अपनी सोल के लिए काम नहीं करेंगे। फिर हम कहेंगे हैप्पीनेस क्यों नहीं मिली? इतने मैंने तो $5,000 भी खर्च कर दिए, मैं वहां पर घूम भी आया, मैं एसएल वर्ल्ड में, यूनिवर्सल स्टूडियोज में, यहाँ सब कहीं जगह भी आया, फिर भी मजा नहीं आया। विराज बोल रहा था, कहता पापा फिर कब जाएंगे वहां पे? मैं क्या, हम सिंगापुर जा आए हैं। तो कहता फिर कब जाएंगे? मैं क्या, वो याद है तेरे को, 2 साल पहले गए थे? कहता नहीं पापा, याद तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर फायदा क्या जाने का? जब तुम्हें याद ही नहीं है, उसकी एक भी जगह नहीं याद, तो वाई वाई यू वांट टू गो एंड वेस्ट मनी? तो हम जाते रहते हैं, हम वो मूवीज देखते हैं, मूवीज याद है आपको? मैं आज से 5 साल पहले जो मूवी देखी होगी वो याद होगी आपको, मैं दोबारा दिखा दूंगा, फिर उसके कुछ कुछ सीन्स याद आएंगे, फिर पता चलेगा अच्छा हाँ ये तो देखी हुई है। तो ये हालत है, हम अपनी हैप्पीनेस इधर 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 ढूंढते जा रहे हैं, कहीं से मिल नहीं रही, और बिकॉज वी आर नॉट फीडिंग द सोल, सोल को नहीं फीड कर रहे हैं, वहां पर प्रॉब्लम है। अभी कुछ ऑफिस के डेज कई बार हेक्टिक होते हैं मेरे, तो उसके बाद मैं आई एम सो एग्जॉस्टेड कि यार छोड़ो, आज तो मुझे कुछ नहीं करना है, शाम को जाके बस मैं मुझे घर से बाहर निकलना होता है, या अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो क्यों? क्योंकि सारा दिन सोल को कुछ मिला ही नहीं। अगर ऑफिस हेक्टिक इतना नहीं होता तो बीच में मैं भागवतम पढ़ ली, बीच में भगवत गीता का वर्स पढ़ लिया, तो सोल थोड़ी शांत रहती है, काम रहती है। तो वो हम रिजुविनेटेड रहते हैं। ये ब्रह्मचारी लोग, ये जो टेम्पल में इतना इतना करते हैं काम, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, हाउ दे डू इट? बिकॉज 4 से 11 बजे तक दे आर फीडिंग द सोल, दे आर फीडिंग द सोल। तो कुछ जरूरत पड़ती नहीं है, बॉडी करती है काम।
हमें बोलो 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम करो ऑफिस का, ऐसे लेट जाएंगे हम उसके बाद, है ना? तो द काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू आर डूइंग, that depends on your happiness. If you are doing the activities which are spiritual in nature, that is feeding the soul, you will be happy. Otherwise you won't be happy. So feeding the soul, आत्मा राम, हमारे अंदर ही खुशी है, हमें जस्ट उसको बाहर निकालना है। आई प्रेफर कि मैं वॉक के लिए जाऊं, मैं अकेला ही जाऊं, मैं अपने ईयरबड्स लगा के मैं चला जाता हूँ हमसे। आई आई वॉन्ट टू बी इन साइड, मतलब अंदर। मुझे नहीं चाहिए और 10 लोग आए हम घूमने जाएं, बिकॉज मुझे उसमें मजा आता है अकेले में, सोशल गैदरिंग्स और उनसे। बट आई नो कुछ लोग हैं, दे नीड सोशल गैदरिंग्स। मेरा होस्ट है, ही डजंट लाइक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग्स एट ऑल, ही इज स्केयर्ड ऑफ, उसको फोबिया फोबिया है। तो फर्स्ट डे भक्ति वृक्षा, एक साथ 60-70 लोग आए, एंड ही, माता जी ने पहले ही बोला था कि वो कहीं चला जाएगा। वो कहीं चला गया, छुप गया जाके। क्लास के बाद मैंने बोला, मैं कहा प्रभु कहाँ थे आप? आई कांट बी इन द सोशल गैदरिंग, राइट? So sometimes we also say, na, leave me alone. I need some me time, right? So, but unfortunately or fortunately, we can't do that because we have kids. दो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, वो हमारा सारा टाइम आ जाते हैं, हमारे ऊपर चढ़े रहते हैं। So we can't have that time for मननम. All we can do is श्रवणम। मननम के लिए वक्त नहीं रहता हमारे पास। और मुझे कई बार लगता है, मैंने कहा अभी हम, बच्चा आता है तो हम बोलते हैं, चल चल भाग जा, चल ये कर ले। तो फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम यही टाइम याद करेंगे कि बच्चे हों आसपास। वो मूवी थी ना उसकी, कौन सी वो, कमल हसन की, जिसमें श्रीदेवी वो होती है, श्रीदेवी और कमल हसन की मूवी थी एक, सदमा। किसी ने देखी है सदमा मूवी? नहीं? चलो अब देखना भी मत, अब तो क्या देखोगे। उसमें ऐसे श्रीदेवी वॉज मेंटली चैलेंज्ड, and Kamal Hassan used to nurture her, and in the end of the movie श्रीदेवी ठीक हो जाती है, और जो भी उसके साथ होता है, कमल हसन के साथ जो भी उसका जो टाइम बीता होता है, शी फॉरगेट्स। वो उसको याद दिलाने की कोशिश करता है, उसको उससे प्यार हो जाता है, उसको याद दिलाने की कोशिश करता है, बट शी कुडंट। और वो करते करते एंड में वो खुद ही पागल हो जाता है। तो दिस इज अवर, अगर हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं बच्चों से या किसी भी ऐसे मटेरियल चीजों से, तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट? So there are many people who I know, जो they are Atmaram. They just don't want to interact much with, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि बाहर से इट्स, आई मीन इट्स इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल अपने आप को कट करके कमरे में बंद कर लो। इफ यू कैन, दैट इज फाइन, बट यू शुड बी हैप्पी। ये नहीं होना कि कमरे में बंद कर लिया, डिप्रेशन में चले गए आत्माराम के चक्कर में। वो वो नहीं करना है। आत्माराम का मतलब उसके बाद तुम कुछ कर रहे हो, ये नहीं कमरा बंद करके हम टीवी नेटफ्लिक्स ऑन कर लिया है। इससे बेटर है फ्रेंड्स के साथ जाओ घूमने। बट इफ यू कैन रीड श्रीमद् भागवतम, इफ यू कैन डू चैंटिंग, क्वालिटी चैंटिंग, देन डू दैट, गिव दैट मोर इम्पोर्टेंस देन गोइंग अराउंड एंड रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर, जस्ट फीडिंग द बॉडी। दैट इज वाई कृष्णा इज आत्माराम एंड वी आर ऑल्सो आत्माराम। इट्स जस्ट दैट कि हमने वो पोटेंसी, उस आत्माराम वाली पोटेंसी को अभी तक हम टैप नहीं कर पाए हैं। नहीं तो हमारे अंदर ही इतनी हैप्पीनेस है कि वी कैन वेरी इजीली बी हैप्पी जस्ट बाय बीइंग माई सेल्फ। हाँ। नेक्स्ट इज, अब वो उसमें क्या कर रहे हैं, अब वो जो जितने भी वहां पर हैं, जो सिटीजन हैं, अब भगवान कृष्ण वहां पर आए हैं, और अब वो उनको क्या कर रहे हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति, क्या है वो, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या बोलता है, ददाति प्रतिगृह्णाति, आगे प्रभु। प्रभु जी अभी नहीं हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट, ओ सॉरी, नेटवर्क इंस्ट्रक्शन नहीं किया अभी, ओके ओके। ददाति प्रतिगृह्णाति, भुंक्ते भोजायते, हाँ, ददाति प्रतिगृह्णाति भुंक्ते भोजायते, गुह्यम आख्याति पृच्छति, षड प्रीति लक्षणम। प्रीति के 6 लक्षण हैं, आपस में डिवोटीज के 6 लक्षण हैं, क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति, यू गिव गिफ्ट्स, यू टेक गिफ्ट बिटवीन द वैष्णवास, एंड देन नेक्स्ट इज भुंक्ते भोजायते, यू गो टू देयर हाउस
for prasadam, you call them to have prasadam at your house. And then guhyam akhyati prachati. Then you share your heart with them. Guhyam, very, very secretive talk you should do with devotees. हाँ? तो these are the, इससे क्या होगा, आपके बीच में प्रीति लक्षण बनेंगे. So this is what they are doing with Krishna. They are giving Krishna because Krishna सबको पता है Krishna is giving. अभी बचपन, डिवोटी छोड़ो, नॉन डिवोटीज को भी दे रहे हैं ना वो, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो सोचो डिवोटीज को कितना दे रहे होंगे, है कि नहीं? सो नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर गिविंग टू कृष्णा. एंड उसमें बोल रहे हैं कि एक, these presentations were like offering a lamp to the sun. अब एक सोचो, अगर आप सूरज को दिया दिखा रहे हो, these offerings are like that. एक बार शिला प्रभुपाद वहाँ न्यूयॉर्क में थे, तो एक ड्रगी आया, और वो ड्रग एडिक्ट टॉयलेट पेपर लेके आया, एंड प्रभुपाद praised him, right? So it does not matter कि वो एक लैंप के समान है सन के आगे. कोई भी ऑफरिंग कोई अगर करता है, इट इट डजंट, हमें ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा चलो कोई बच्चे के बर्थडे पे गिफ्ट लाया, अरे ये क्या गिफ्ट लाया, ये तो $10 का है, Kmart वाला गिफ्ट दे दिया मेरे को. नो, किस भाव से उसने दिया है, दैट इज इम्पोर्टेंट. दैट इज इम्पोर्टेंट. वी ऑलवेज लुक फॉर एक्सटर्नल. एक भक्त का ददाति प्रतिगृणाति प्रिंसिपल वी शुड फॉलो के, दिया है. अब हम ऐसे तो कृष्णा भी हमारे, एक जो भी हम दे रहे हैं कृष्णा को, कृष्णा रिजेक्ट कर दें, कैसा लगेगा कि ये तो मेरे पास पहले ही है, ये कि मुझे क्या दे रहे हो ये, ठीक है ना? बट नो, ही इज एक्सेप्टिंग दोज गिफ्ट्स, राइट? कौन सी वो है ना, हालांकि वो आत्माराम है, स्टिल ही इज एक्सेप्टिंग ऑल दोज गिफ्ट. वो हमने कई बार सुनी है ना वो दुर्वासा मुनि और कृष्णा की स्टोरी, कि दुर्वासा मुनि एक बार वृंदावन आए, वो यमुना पार थे वो. तो सभी गोपियां क्या किया उन्होंने, वो 56 भोग बना के दुर्वासा मुनि के पास लेके जा रही थी. तो बीच में यमुना थी, तो उन्होंने कृष्णा को बोला कि कृष्णा, ये यमुना है बीच में, तो प्लीज हेल्प मी, हेल्प अस गोइंग टू दुर्वासा मुनि. तो कृष्णा ने बोला ऐसा बोलो कि कृष्णा जो हैं वो तो आत्माराम हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने में खुश रहते हैं. तो गोपियां बोलती हैं, अरे ये क्या बात हुई, सारा दिन तो तू हमारे साथ घूमता है, हाँ? तू कहाँ से आत्माराम है, तू कहाँ से अकेला रहता है, हम कैसे मान जाए ये बात? कहते नहीं नहीं तुम बोल दो जाके. तो बोलती हैं, वहां जाती हैं, और यमुना रास्ता दे देती है. जब ये यमुना को ये बात बोलती हैं जाके, चलो उधर चले गए. वहां पे जाके 56 भोग दुर्वासा मुनि ने एकदम खाया, डकार मारा आराम से खा पी के. तो बोलते हैं दुर्वासा, अब वो वापस आने का रास्ता फिर वो भूल गई, अब क्या बोलें. तो वो दुर्वासा मुनि से पूछती हैं, दुर्वासा मुनि हमें वापस जाना है, तो क्या करें? तो दुर्वासा मुनि ने बोला कि जाओ यमुना के जग को जाके बोल दो कि मैं तो दुर्वा पे जीता हूँ. दुर्वासा उनका नाम तभी पड़ा कि वो दुर्वा, दुर्वा होता है घास, घास को पीस के उसमें पानी डाल के बस उसी पे जीता हूँ मैं. तो वो फिर देख रही है कि अरे, अभी तो ये 56 भोग डकार कर गया और ये बोल रहा है कि मैं दुर्वा पे जीता हूँ. और ये जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों सब एक जैसी हैं ये. तो फिर भी वो चलो जाती हैं, और यमुना को जाके बोलते हैं कि दुर्वासा मुनि तो 56 भोग वगैरह वो नहीं खाते, वो तो सिर्फ दुर्वा पे ही जीते हैं. तो यमुना फिर से रास्ता दे देती है उनको. फिर वो आके कृष्णा से पूछती हैं, कृष्णा व्हाट इज दिस, इतनी वियर्ड बात कि तुम आत्माराम हो, तुम कभी गोपियों का संग नहीं किया तुमने, और इधर से वो बोल रहे हैं कि उन्होंने 56 भोग कभी नहीं खाए, तो हाउ इज इट पॉसिबल? देन कृष्णा एक्सप्लेन देम कि वी एक्चुअली डोंट नीड इट. ठीक है, मैं आई एम आत्माराम एक्चुअली, आई डोंट नीड ऑल ऑफ यू, नथिंग, नो वन आई नीड. ठीक है ना, बट आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर योर प्लेजर. सेम वे दुर्वासा मुनि को कोई जरूरत नहीं है 56 भोग खाने की, ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर योर प्लेजर, कि आप बना कर लाए हो, तो ही इज नॉट सेइंग नो टू इट, राइट? तो इसीलिए हमें भी, चाहे हमें जरूरत है या नहीं है, वी शुड नॉट निग्लेक्ट, वी शुड टेक हेल्प, डिवोटीज की हेल्प लेनी चाहिए. और हम बोलते हैं नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाट प्राइड, एरोगेंस. कृष्णा वो नहीं कर रहे हैं, कृष्णा वो सिखा रहे हैं हमें, दुर्वासा मुनि हमें सिखा रहे हैं. ऑल्दो इन फ्रंट ऑफ कृष्णा इट इज व्हाट, नथिंग बट अ लैम्प, छोटी सी लैंप है. अब सन, सन क्या होता है सन? थोड़ा ऑफ टॉपिक जाता हूँ. सन का
सन में जितना तेज है ना, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस टू लिव। यूजुअली जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? दवाई खाते हैं, तो बेसिकली यहाँ पीते हैं। ठीक है, खाना और पीना। तो हम अपनी बॉडी के कौन से उनको, हमारी बॉडी किन से बनी है? पंच महाभूत से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो हम सिर्फ पृथ्वी और जल, ये दो एलिमेंट्स लेके हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, इजंट इट? बट साइंस भी ने भी अब तो मानने लगी है कि वायु, आकाश और अग्नि, ये तीन एलिमेंट्स हम हमारी इन तक पहुंच ही नहीं है अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए। वायु से भी तुम ठीक हो सकते हो, प्राणायाम इज वन ऑफ देम। एंड आकाश एंड अग्नि, अग्नि इज सन। बहुत सारे योगीज हैं इंडिया में जो कि कुछ खाते पीते नहीं है, जस्ट सन गेजिंग। दे डू सन गेजिंग। इवन नासा से साइंटिस्ट आए हैं यहाँ पर आके, वो 3 3 4 4 महीने रहे हैं। योगियों पे उन्होंने रिसर्च करी है कि और उन्होंने, योगी कुछ नहीं खा रहा है, सुबह उठता है, सन गेजिंग करता है, शाम को सन गेजिंग करता है, दैट्स इट। इतना पावरफुल है सन, राइट? तो फास्टिंग, बेसिकली फास्टिंग पे आ रहा था मैं, कि फास्टिंग इज सो इम्पोर्टेंट। जब हम जल और पृथ्वी, ये जो चीजें नहीं लेते, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्टिवेटिंग द अदर थ्री, वायु, आकाश और अग्नि, जो हमारे अंदर है। तो हमारी बहुत सारी डिजीजेस जस्ट फास्टिंग से ही क्योर हो जाती हैं। और अभी कल परसों मैं आर्टिकल पढ़ रहा था एक, उसमें भी डॉक्टर, आई थिंक अमेरिका का डॉक्टर था, उसने बोला कि इफ यू फास्ट, कैंसर सेल्स, सिक सेल्स, और ये आपके अल्जाइमर, बहुत सारी आपकी डिजीजेस सिर्फ फास्टिंग से क्योर हो जाती हैं। बिकॉज बॉडी को ये तीन जब चीजें भी एक्टिवेट हो जाती हैं, वायु, आकाश और अग्नि, राइट? तो जो सन फूड को एनर्जी देता है, उसी से ही फूड ग्रो होता है ना, वो फूड खा के हमें एनर्जी मिलती है। सो वी कैन डायरेक्टली टेक एनर्जी फ्रॉम द सन एज वेल। I mean, not we, but yeah, we have to do some yoga and all. But the point here is कि sun में इतनी एनर्जी है, एंड उसको हम लैंप दिखा रहे हैं। It is nothing. So what we can offer to Krishna, we can literally offer nothing to Krishna. हम्म? तो इसमें एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, फिलियल डिमांड्स, फिलियल रिलेशनशिप्स, फिलियल, पित्रम सर्व सुहृदम। तो भगवान के साथ हमारा लविंग रिलेशनशिप है, लविंग रिलेशनशिप। एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद ऐसे ही किसी मंदिर में गए, तो वहां पर एक लेडी उनको देख के बोली कि वाह, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो नाइस। तो वहां पर एक कोई और डिवोटी होगा, वो बोला कि नो, इट इज नॉट सो नाइस, देयर आर सम इश्यूज हियर, प्रभुपाद के सामने ही। तो प्रभुपाद ने देखा कि अच्छा, अब दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई। लेडी ने बोला कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो नाइस, तो उसने बोल दिया इट इज, देयर आर सम इश्यूज हियर। तो प्रभुपाद ने आंसर दिया, कहते इनसाइड इट इज नाइस, आउटसाइड इट इज नॉट सो नाइस। मतलब अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहेंगे वो अच्छा है, बाहर वर्ल्ड अच्छा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट, बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल। देर आर पीपल। तो ये जो लविंग रिलेशनशिप्स हैं, तो जो यहाँ पर फिलियल रिलेशनशिप्स बोल रहे हैं ना, तो ये दीज लविंग रेसिप्रोकेशन जो कृष्णा के साथ कर रहे हैं, दे आर वेलकमिंग देयर गार्डियन एंड फादर, राइट? सो दीज आर मिसिंग, अनफॉर्चुनेटली। दीज रिलेशनशिप्स, इवन आफ्टर स्पेंडिंग 15 20 years in krishna consciousness, people don't have even one single friend whom they can have these loving relationships, राइट? इवन जो हमारे सनातन गोस्वामी थे, ये भक्ति विनोद ठाकुर, ये कविराज गोस्वामी, सारे गोस्वामी जो थे, दे सेड कि कृष्णा, आई डोंट हैव अ लविंग रिलेशनशिप विद यू। तो सोचो, गोस्वामीज कह रहे हैं कि दे डोंट हैव अ लविंग रिलेशनशिप, फॉरगेट अबाउट अस, हमारा तो क्या ही हाल होगा, हमें तो पता ही है, राइट? सो बट देन समन आस्क्ड कि व्हाट आर यू डूइंग इन वृंदावन देन? अगर तुम्हारा कृष्णा के साथ कोई लविंग रिलेशनशिप है ही नहीं, तुम वृंदावन में क्यों बैठे हो? तो व्हाट दे सेड, कि वहां पर बैठ के एटलीस्ट आई एम एंजॉयिंग द पास्ट टाइम्स, कि कृष्णा के और लोगों के साथ तो लविंग रिलेशनशिप्स हैं, एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम देम। सो गोस्वामीज आर लर्निंग
फ्रॉम कृष्ण कथा के हाउ डिवोटीज आर इंटरेक्टिंग विद कृष्णा. तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि सिटीजन्स अराइव्ड बिफोर द लॉर्ड और उन्होंने दे आर हैविंग अ लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा. तो दिस इज व्हाट वी शुड लर्न, राइट. और कृष्णा के साथ रिलेशनशिप, कृष्णा इज वेरी फार, हमें पता है ना, काफी दूर हैं वो हमारे वो उसमें. तो वी स्टार्ट विद दास 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 अनुदास. एटलीस्ट डिवोटीज के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे, तब कृष्णा के साथ रिलेशनशिप्स आपका लविंग रिलेशनशिप बनेगा. अब डिवोटीज के साथ बोलोगे कि उससे भी पहले एक स्टेप पहले लेते हैं, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम. क्या हम अपने घर के अंदर हमारे रिलेशनशिप ठीक है? हमारे हस्बैंड, हमारे वाइफ, हमारे बच्चों, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिस्टर, हमारे ब्रदर, क्या उनके साथ रिलेशनशिप ठीक है? अगर नहीं ठीक तो वाई, क्यों नहीं बन रहे हमारे रिलेशनशिप्स डिवोटी कम्युनिटी में? वाई वी आर नॉट एबल टू मेक रिलेशनशिप्स? एनीवन वांट्स टू कमेंट कि क्यों नहीं बन रहे हैं? जी आपने बोला डिवोटी कम्युनिटी में या? हाँ, डिवोटी में भी, फैमिली में भी. मैं तो सर्कल में आ रहा हूँ ना, धीरे धीरे ड्रिल डाउन कर रहा हूँ कि क्या हमारे डिवोटीज में कोई ऐसे रिलेशनशिप्स बने हमारे कि जिससे हम एकदम गुह्यम आख्याति प्रचिति कर सकें, कि इतना हम अपने मन की बात शेयर कर सकें. अगर हैं जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हो, ऐसा कोई डिवोटी है, तो इट इज वेल एंड गुड. वी शुड हैव वन, एटलीस्ट वन. बट इफ वी डोंट हैव, even after spending so many years in Krishna consciousness, then it is a matter of bit concern, isn't it? Yeah. Someone was saying something. Okay. कि क्यों क्यों नहीं बनते? Why can't we make the relationships? डिवोटी के अलावा के लोग के साथ तो समझ आता है क्यों नहीं बनते, लेकिन विद डिवोटीज नहीं समझ आता, वो तो बन ही जाते हैं ना। आउट ऑफ फियर प्रभु जी, डर लगता है कभी कभी कि आई डोंट वांट टू लूज देयर एसोसिएशन. सो इफ यू शेयर, for example, I sometimes fear sharing the counts of my mala, because fearing that what if they don't Judge. associate with me. You know what I Right. mean? Like, it's constant fear that I don't want to lose their association while Uh, I still want their guidance. uh, uh, uh. So fear at the back of the mind. Before I share, I try to filter it. Correct. That's a good point. और कहीं ना कहीं वो फियर इसीलिए है because anyone else first, let me see if anyone wants else want to comment, then I'll comment on Pooja Mataji's answer. नहीं तो वो Sorry, Prabhuji, हाँ. I want to say something. I हाँ जी, हाँ think जी. faith की भी कमी होती है. We can't have complete faith on the other person कि हम करेक्ट. उनको पूरी तरह से we करेक्ट. can share our feelings or whatever we करेक्ट. feel. सो दैट वो सामने वाला बंदा उसको एक्सप्लॉइट ना करे, आपकी Exactly. वीकनेस प्रभु को जी, एक्सप्लॉइट ना करे. तो फिर हाँ. प्रभु जी ये तो फिर अगर डिवोटीज की बात करते हो और जैसे माता जी ने बताया, तो फिर ये तो फिर मटेरियल हो जाएगा ना, वैसे हम सोचने जाए तो, क्योंकि जैसे मटेरियल. यानी मटेरियल इन द सेंस कि फेथ नहीं है, यानी फेथ इन द फेथ फेथ का तो चलो समझ आ गया, लेकिन नहीं 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 है प्रभु जी, सही है माता जी, आई थिंक। हाँ. राइट. राइट. तो व्हाई दिस हैपेंस? ऐसा क्यों है कि हमारा फेथ नहीं बन पाता, या जैसे पूजा माता जी ने कहा, हमें हमें डर लगता है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? जैसे बोला ना कि वो सीनियर डिवोटी है, उसकी एसोसिएशन ना छूट जाए, इज बिकॉज दैट उपाधि, दैट पोजीशन दी हुई है. आई एम अ सीनियर डिवोटी, आई एम अ जूनियर डिवोटी. व्हाई वी कांट बी जस्ट प्लेन डिवोटीज? जब हम आए थे शुरू शुरू में कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वी ऑल वर डिवोटीज, सिंपल प्लेन डिवोटीज. बट धीरे 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 क्या हो गया, हम पे टैग्स लगते गए. ये बहुत अच्छी क्लास देते हैं प्रभु, तो ही इज अ वेरी गुड प्रीचर. चलो जी, प्रीचर का टैग लग गया, ऐसे हो गई गर्दन. आई एम अ वेरी गुड प्रीचर. ठीक है. फिर कि प्रभु जी बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, तो कीर्तनिया का टैग लग गया. नाउ आई एम अ कीर्तनिया.
आई एम अ वेरी गुड काउंसलर, आई एम अ प्रेसिडेंट, आई एम जीबीसी, आई एम दिस, वो बड़ा होता गया, बड़ा होता गया. तो all these positions, what these positions have done, they have taken the essence of plain devotee. यार दो डिवोटी मिले हैं आपस में, कृष्ण कथा करो ना, बात खत्म. जब दो डिवोटी मिलते हैं तो क्या करना चाहिए उनको? कृष्ण कथा. दैट्स इट. बट हमारी वो, जैसे पूजा माता जी ने कहा, जैसे रुचिता माता जी ने कहा कि हमें वो लगता ही नहीं है. वो लगता है कि अच्छा, तो वो तो बहुत बड़ा काउंसलर है, वो तो बहुत बड़ा प्रीचर है, तो हमें डर लगता है या हम अपनी बात शेयर करने से घबराते हैं. अगर हम सब सेम प्लेटफॉर्म पे सोचें अपने आप को, वी आर जस्ट प्लेन डिवोटीज ऑफ कृष्णा एंड वी हैव टू डू कृष्ण कथा, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अभी हम कितनी जगह पर इसीलिए ही नहीं जाते कि अरे मैं तो भक्ति वृक्षा लीडर हूँ, मैं वहां पर जाऊंगा, मैं वहां पर झाड़ू मारूंगा जाकर, हाँ? मैं वहां सेटअप के कुर्सियां उठाऊंगा, मैं करूंगा ये, मैं तो लीडर हूँ. अब जाके देखो, मैनी पीपल दे हैव दिस इनहिबिशन कि मैं तो ये बन गया हूँ, आई कांट डू दिस थिंग नाउ, मैं तो ऑल्टर में जाके आरती करता हूँ, अब मैं ये काम करूंगा, मेरा तो वो वाला काम था ऑल्टर में जाके आरती करने का, मैं अब ये काम मैं नहीं कर सकता, सॉरी, ये अगेंस्ट माय प्रेस्टीज है, आई कांट डू दैट. कहाँ मैं क्लास देने जाता हूँ, मैं वहां पर क्लास सुनने जाऊँ? नो, नॉट पॉसिबल. कहाँ मैं कीर्तन करता हूँ, कहाँ मैं कीर्तन सुनने जाऊँ किसी का? नो. सो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? हम सारी चीजों से दूर होते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ आवर ईगो, बिकॉज ऑफ आवर फॉल्स ईगो, बिकॉज ऑफ दीज पोजीशंस, बिकॉज ऑफ दीज टैग जो हमने अपने आप पर लगा लिए हैं, सेल्फ क्रिएटेड, isn't it? So what we have to do is we have to go back to basics, back to basics. पहला दिन, पहले अपने इनिशियल डेज हमें अपने इस्कॉन में, अपने इस कॉन्ग्रीगेशन में हमें याद करने चाहिए. वी वर मच मच हम्बलर, we were much humbler than what we have become now. I'm not saying to you guys, but I'm talking about myself. We have No, become, probably that's so true. right, we have become इनिशियल so, डेज आर ऑलवेज द बेस्ट, मुझे भी यही लगता है. हम जब शुरू शुरू में आए थे, इनोसेंस था. जैसे hmm, जैसे हमें हमें मतलब हम कोशिश करते नहीं है कि पता नहीं, मतलब ट्राई करते हैं कि हम ना बने, बट आई थिंक लोग हमें इतना चढ़ा देते हैं कि I know. ऑटोमेटिकली होने लगती है वो चीजें. बट यार इनोसेंट डेज थे वो, कि हम शुरू hmm, शुरू में कुछ जानते नहीं है, हमें जानने की इच्छा होती है. अभी भी hmm. नहीं जानते वैसे तो, Yeah, बट and it is hard, बहुत इट इज. मुश्किल है. I can see, I've seen many people who they are so miserable, I would say, because of उन्होंने वो अपने ऊपर उपाधियां ले ली हैं खुद से, सेल्फ क्रिएटेड, कि मैं तो ये हूँ. एज अ रिजल्ट वो वो भक्ति नहीं कर पा रहे, वो लविंग रिलेशनशिप्स नहीं बना पा रहे, वो कुछ नहीं हो पा रहा. बिकॉज बिकॉज टैग क्या है? आई एम अ सीनियर डिवोटी, मुझे 5 साल हो गए हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, मैं अब सीनियर डिवोटी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकूंगा. राइट. तो लास्ट पैराग्राफ एक बार पढ़ते हैं, देन विल स्टॉप. The Lord is the supreme father of all living beings, and therefore those who are conscious of this vital relationship with the Lord, वाइटल रिलेशनशिप है ये भगवान के साथ, कैन मेक द filial demands from the father, and the father is pleased to supply the demands of such obedient sons without bargaining. Very important, without bargaining, right? तो अगर हमारे रिलेशनशिप सिंपल होंगे डिवोटीज के साथ, तो वही रिलेशनशिप्स हमारे कृष्णा के साथ भी होंगे. जो चीज आज हम डिवोटीज के साथ कर रहे हैं, वो चीज कल हम जाके कृष्णा के साथ भी करेंगे, वो जाके कल हम सीनियर डिवोटीज के साथ करेंगे, और फिर आगे आगे करते करते कल को हम प्रभुपाद में, आचार्यास में, सब में गलतियां ढूंढेंगे, सबको अपने से नीचे समझने लग जाएंगे एक दिन. ये होगा हमारे साथ. राइट. सो फॉरगेट अबाउट relationship with God, with Krishna. The Lord is just like the desired tree, and from him everyone can have everything by the causeless mercy. Right. This is quite clear. Hmm? So, as the Supreme Father, the Lord, however, does not supply to pure devotee what is considered to be a barrier to discharge the devotional service. Right? तो अब वो क्या बोलते हैं कि वो कृष्णा, वो प्योर डिवोटी को डज नॉट सप्लाई टू अ प्योर डिवोटी व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी अ बैरियर टू डिस्चार्ज ऑफ द डिवोशनल सर्विस. हमने उस चीज को बैरियर बना लिया है.
हमारी आदत है, और कोई बैरियर नहीं है हमारी लाइफ में डिवोशनल सर्विस करने के लिए, राइट? पैसा है, घर है, ठीक ठाक सब, जॉब है, एवरीथिंग एल्स, हमारे रिलेशन सही हैं, फैमिली मेंबर सब हैं, सब कुछ बढ़िया है। बट हमने एक और बैरियर खुद, सेल्फ क्रिएटेड बैरियर बना लिया है डिवोशनल सर्विस करने के लिए। नो, आई वोंट बी एबल टू डू दैट, दिस इज अगेंस्ट माय माय प्रेस्टीज। So those who are engaged in the devotional service of the Lord can rise to the position of unalloyed devotional service by his transcendental attraction। कृष्णा की तरफ अगर अट्रैक्शन होगी ना, तो हमें अपनी सर्विसेज के साथ इतनी अटैचमेंट नहीं होगी। अब कई बार होता है ना कि अरे यार, मैं सारी जिंदगी में यही करता रहूंगा क्या? जा जाके वहां पे चेयर रखता रहूंगा, जा जाके झाड़ू मारता रहूंगा, क्या मैं यही करता रहूंगा? बट अगर आप, इफ यू आर डूइंग दिस फॉर कृष्णा, इट इज अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, देन यू विल लव दैट एज वेल। ठीक है? अगर आप यही कर रहे हो तो यू विल लव इट। अब जितने 5 रस है ना, दास्य रस, साक्ष्य रस, अ, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, शांत रस, बोलते हैं, बोलते वैसे बोलते हैं ना, माधुर्य रस ऑन द टॉप, देन वात्सल्य एंड ऑल। बट इट इज सेड कि whosoever is there in each rasa, they have full, वो उसमें फुली इंजॉय कर रहे हैं उस रसा में। एक घास का तिनका भी है ना, जब वो घास चरवाने चराने जाते हैं कृष्णा, तो वो एक घास का तिनके के ऊपर जब कृष्णा पैर रखते हैं, वो भी उतना ही खुश होता है जितना एक राधा रानी खुश होती है जब कृष्णा उनसे मिलते हैं। इक्वल, दे आर इक्वल इन हैप्पीनेस, दे आर इक्वल इन ब्लिस, राइट? सो सेम वे हमें, बट आगे आगे और बढ़िया सर्विस चाहिए, राइट? विच, और इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, और इससे हमें सेटिस्फेक्शन फील नहीं, फिर नहीं मिलने वाली। इसीलिए जाके बस अभी जो वट एवर वी आर गेटिंग, वट एवर जिसमें हमारी इंक्लिनेशन है, वी शुड डू दैट, एंड वी शुड डू इट विद द मूड ऑफ अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस, जस्ट कि हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं, आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, नॉट फॉर एनीवन एल्स, राइट? ऑलराइट, so we'll stop here. Any questions, comments? प्रभु जी, इतना करने के बाद भी ये जो लविंग रिलेशन बता रहे हैं, वो डेवलप नहीं हो रहे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है प्रभु कि हम जो डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं वो अनएलॉयड नहीं है, वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे ये मिलेगा। दैट कृष्णा पिक्चर में नहीं है, कृष्णा कहीं पिक्चर से जा चुके हैं, दैट इज द रीजन। अगर सिर्फ हम यही कर सोच के करेंगे ना कि आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, देन यू विल सी इट वर्क्स वंडर्स। आई एम टेलिंग यू विद माय ओन एक्सपीरियंस। अब फॉर एग्जांपल किसी के जैसे हमारी गॉड फैमिली मिलती है, तो इफ वी आर कुकिंग या हम किसी के घर पे प्रसादम लेके जाते हैं, व्हाट वी आर थिंकिंग कि हम उसके घर पे लेके जाएंगे, वो हमारा दोस्त है, उसके घर पे लेके जाएंगे, वो हमारा इतना अच्छा दोस्त नहीं है। ठीक है? तो वी, वो हम जो कर रहे हैं, प्रसादम जो हम बना रहे हैं, जिस कॉन्शियसनेस से बना रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन अवर रिलेशनशिप विद दैट डिवोटी। कृष्णा पिक्चर में नहीं है। अगर मुझे लगे कि हाँ, वहां पर कीर्तन हो रहा है, आई एम मेकिंग प्रसादम फॉर कृष्णा एंड फॉर ऑल द वैष्णवास, देन उससे 2 चीजें होंगी। एक तो यू आर डूइंग इट फॉर कृष्णा, सेकेंड होगा कि आपको जिसके लिए आप लेके जा रहे हो, जिसके घर पे जा रहे हो, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि कल को वो मेरे लिए भी लेके आएगा, बिकॉज आपने उसके लिए किया ही नहीं है, आपने कृष्णा के लिए किया है। गेटिंग माई पॉइंट? और कल को अगर वो आपको नहीं करेगा, अगर आपको कल का आपने इवेंट रखा, मैं इस ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दिस हैपेंस राइट इन अवर कॉन्ग्रीगेशन, वेरी कॉमन। तो व्हाट हैपेंस इज के फिर वो नहीं करेगा, तो आपको कृष्णा, व्हाट कृष्णा विल डू, ही विल call some other person in your life. If you are helping, if you are cultivating, for example, if you are cultivating ABC, the ABC will not be able to reciprocate with you, they might or they might not, but XYZ will definitely reciprocate with you. Krishna will send XYZ in your life, right? So that
you are at least satisfied for the time being. Does that make sense, प्रभु? तो तम सिद्धि हरितोषणम, सिर्फ कृष्णा को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो. हम लोगों को सेटिस्फाई, उनको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, which is not bad, but do it with the mood by keeping Krishna in center, that I am doing it for Krishna, and बाय प्रोडक्ट है कि किसी का भी भला हो रहा है. Yes, Prabhu ji, that makes sense. सही बात है. प्रभु जी, पे फेथ की बात अगर आप करते हो, लोगों पे आप जो फेथ डेवलप करने की बात, इसमें तो आप बोलो रेसिप्रोकेशन हमें चाहिए होता है हमें, बट फेथ के लाइक हाउ डू यू डेवलप faith, yes, it's a you're bit right. hard, I feel It कि is very hard, it is very hard, Mataji. like you want to So share something with someone, it can be a very deep personal लाइफ को लेकर आपकी कुछ मतलब डेफिनेटली आपकी पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट्स इन योर स्पिरिचुअल लाइफ एंड एवरीथिंग इज it सो does, रिलेटेड. But correct, how do you know if you've been sharing with the right person? correct. Even So within the devotees, it's hard. हाँ, तो इसका माताजी एक चीज तो है, मैं आपको इसके 3 लेवल्स में आपको बताता हूँ. एक तो इफ यू आर इनिशिएटेड डिवोटी, ठीक है, तो राइट अ लेटर टू योर स्पिरिचुअल मास्टर, उनको ईमेल करो, व्हाट्सएप, जो भी उनका कम्युनिकेशन का चैनल है, राइट टू हिम. ऑल्दो वो उनको आपकी डे टू डे लाइफ का नहीं पता, डज नॉट मैटर, दे दीज पीपल आर ट्रांसीडेंटल. तो वो आपकी ईमेल पढ़ के, आपका व्हाट्सएप पढ़ के, ही विल रिस्पॉन्ड टू यू, एंड जो भी वो इंस्ट्रक्शन होगी, 1 लाइनर 2 लाइनर वट एवर इट इज, जस्ट फॉलो इट. वो मत सोचो कि ये मेरे केस में एप्लीकेबल है या नहीं है. इट विल बी अ स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन, और उस इंस्ट्रक्शन में उनकी एम्पावरमेंट छुपी है. सिंपली फॉलो दैट. 1, ठीक है. सेकेंड थिंग, यू सिट डाउन एंड शेयर योर फीलिंग्स विद कृष्णा डायरेक्टली, जब चैंट करने से पहले या बाद में, वट एवर, शेयर योर फीलिंग विद कृष्णा. ट्रस्ट मी, इट वर्क. कृष्णा रेसिप्रोकेट्स. वो फीलिंग ही खत्म कर देंगे. वट एवर जो भी यू आर गोइंग थ्रू, दैट विल बी वैनिश्ड, खत्म टोटली, धड़ से. हाँ, एंड स्पेशली इफ इट इज, इफ इट इज एन इम्पेडिमेंट टू योर स्पिरिचुअल लाइफ, ऐसे खत्म हो जाएगी. ठीक है. थर्ड थिंग इज योर शिक्षा गुरुज. तो योर दीक्षा गुरु, कृष्णा, गुरु साधु शास्त्र, बेसिकली दिस इज ऑल आई एम सेइंग in plain terms. So then there are few Shiksha gurus in ISKCON whom you can trust, क्योंकि वो उन positions पे ISKCON ने establish इसीलिए ही किए हैं कि they are not there to exploit. At least अभी तक तो I haven't seen many who are exploiting, being at that state, at that level. Right. So these things you can try and see which one works for you. Hmm. But yeah, Thank otherwise, you. yeah, with peers, I mean, it's always dicey. You never know. Okay. Prabhu, it's about courage as well. You have to, like, if you go to a psychologist, you share your heart out, right? Hmm. So with the trust that he will not, violate it. So Hmm. what trust comes with the faith? I think it's Correct. kind of simultaneous. Correct. तो वही है ना. अब within congregation, it's psychiatrist is the third person, right? No one knows him. But within the congregation, if you share one thing, what Ruchita Mataji is saying is, if you share something, that will be published the next day. It could be. It, so that is the thing. So with psychiatrist, obviously there is a client relationship. Um, so that won't go anywhere. Ideally, should not. But yeah, this is what we can do. Three three people. This is what I think I have learned. Maybe if anyone else can comment on that. This is what I do basically. Or at least I you should think have one. Prabhu, for me, for now, second point really works well. Hmm. कि मैं डेफिनेटली कृष्णा से तो फॉर श्योर शेयर कर सकती हूँ Yeah, एंड ही इज द बेस्ट he's the वन best. टू He's the best. गाइड. He's the best. और वो एकदम रूट कॉज खत्म कर देंगे, वो एड्रेस करेंगे, और he will just finish it off. या हरे कृष्णा.
जो हरे आप कृष्ण। पहले व्हाट पॉइंट यू वर टेलिंग ना कि हमारे में वो जैसे हम सेवा बढ़ाते हैं तो उसमें हमारा ईगो आ जाता है। तो जैसे वो ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि पहले हम दास अनुदास होते हैं, देन वी बिकम प्रभु, प्रभु जी से। क्या है आगे? मैंने नहीं सुनी है। क्यों नहीं सुनी आपने? महाराज प्रभु हाँ से काइंड ऑफ महाराज तो नहीं, बट महाप्रभु। दैट इज व्हाट यू कीप थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ कि अभी तो प्रभु जी से महाप्रभु। That I am everything. इट हैपेंस, इट हैपेंस। बट अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज, जैसे हम पायलट उसको ट्रैक पे लाता रहता है ना, फ्लाइट को, एरोप्लेन को, ऐसे ही हमें तभी तभी ये लेक्चर्स हैं, राइट? तभी वी हैव टू लिसन 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 डेली, सो दैट वी कीप ऑन ट्रैक, कि हमें वो जो जो एसेंस है वो कहीं ना भूल जाए हम, क्योंकि अब सेवा तो करनी है, ठीक है, सेवा भी करनी है, बट एट द सेम टाइम हमें खुद हमारी भक्ति शुड नॉट बी अफेक्टेड। when I opened the Bhakti Vriksha, Ojasvi Prabhu said, he said, प्रभु कुछ और हो ना हो, आप भक्त रहने चाहिए, एंड ऑफ द भक्ति वृक्षा। राइट? पता चला भक्ति वृक्षा करते करते तो बाकी तो भक्त बने या नहीं बने, तुम कहो कि लो छोड़ के मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना। राइट? तो अपनी कॉन्शियसनेस, अपने आप, अपनी कॉन्शियसनेस तुम्हारी सही रहनी चाहिए। So that is the most important. That is why we are here, to grow, not to go down. Right? तो हमें देखना है कि क्या ये चीजें करके, आर दीज थिंग्स हेल्पिंग मी? क्या ये वाली सेवाज, ये ऐसे ऐसे कर करके, क्या मैं नीचे जा रहा हूँ? क्या मेरी कॉन्शियसनेस नीचे जा रही है? टेक अ ब्रेक एंड देन थिंक, मननम, एंड देन सी कि क्या मैं नीचे जा रहा हूँ, क्या ऊपर जा रहा हूँ, कि क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ, क्या मेरी कॉन्शियसनेस ठीक है? I met few people after a long time, like 2 years, 1, 2 years, and I have seen the difference. उनके जो पहले वो इनोसेंस थी, किसी ने बोला इनोसेंस वर्ड, आई थिंक रुचिता माता जी ने बोला, जो पहले उनके 2 साल पहले जो उनमें इनोसेंस थी, दैट इज गॉन। आई वाज लाइक वाओ, दिस पर्सन। वो, और वो जिन लोगों से आप रोज मिलते हो ना, दे वोंट बी एबल टू टेल यू, बिकॉज उनके साथ तो आप रोज का है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ये सब आपके फ्रेंड्स, दे वोंट बी एबल टू टेल यू। आपसे, आपका कोई पुराना मित्र होगा, उससे अगर कोई ऑनेस्ट फीडबैक देगा, ही विल बी एबल टू टेल यू कि भाई क्या हो गया तुम्हें, ऐसे तुम ऐसे तो ना थे। राइट? और इन अ पॉजिटिव वे कि या यू आर गुड, योर बिहेवियर इज मच बेटर नाउ, काइंड ऑफ, आई मीन इट कैन बी बोथ वेज। ऑलराइट, चलो फिर विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे Thank you. कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे Thank कृष्णा। you. Hare Krishna, हरे कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाय बाय। चलो करो। Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, मिलते हैं। हरे कृष्णा।